محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ خواتین ریزرویشن بل تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ نیو دہلی جنتر منتر پر منعقدہ ایک روزہ بھوک ہڑتال میں ملتی کے کویتا نے کی شرکت۔ ریاست میں اسمبلی انتخابات شیڈول کے مطابق ہی ہونے کا BRS پارٹی توسیع اجلاس سے CM KCR نے کیا اعلان۔ ڈوگرہ کفایت شال سوسائٹی کی جانب سے تیار کردہ مصنوعات کو سپر مارکیٹ خریداری عمل میں لائے۔ قانون ساز اسمبلی اسپیکر کوچرام سنہا ریڈی نے احکامات کیے جاری۔ CM KCR کے دور اقتدار میں روپے عمل میں لائے جانے والی فلاحی و ترقیاتی اسکیمات سے متاثر ہو کر کانگریس BJP سے وابستہ قائدین ضلع TR صدر آدمور MLA جیون ریڈی کے ہاتھوں BRS میں کی شمولیت اختیار۔ نظام آباد رورل حلقے میں TSRTC چیئرمین و رورل MLA باجوڑی گوردھن نے دورہ کرتے ہوئے مختلف شادی تقاریب میں کی شرکت۔ ترمن پلی میں بیرپا مندر کی تعمیر کے لیے رکھا سنگ بنیاد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ دفتر خزات پر قاضی مفتی محبوب قاسمی جمعیت علماء صدر حافظ لئی خان کی جانب سے BRS سینئر قائد طارق انصاری کو تلنگانہ مائنارٹی کمیشن چیئرمین بنائے جانے پر دی گئی تہنیت۔ جناب طارق انصاری کو تلنگانہ مائنارٹی کمیشن چیئرمین بنائے جانے پر آج بعد نماز جمعہ دفتر خزات نظام آباد پر قاضی مفتی محبوب قاسمی و ضلع صدر جمعیت علماء نظام آباد حافظ لئی خان کی جانب سے شاندار تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر حافظ لئی خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جناب طارق انصاری نے تلنگانہ کی آزادی میں بڑا اہم رول ادا کیا اور وہ ہر وقت TRS و BRS پارٹی کے لیے اپنے خدمات گزشتہ 20 سال سے فراہم کرتے آ رہے ہیں اور ان کے لمبے انتظار کے بعد ایک بہترین عہدہ فراہم کیا گیا، جس کے لیے انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR صاحب کا شکریہ ادا کیا اور جناب طارق انصاری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی انجام دی۔ جناب طارق انصاری نے پہلی مرتبہ دفتر خزات پر پہنچنے پر قاضی مفتی محبوب قاسمی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی انجام دی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس عہدے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اقلیتی مسائل کو حل کریں گے اور اس بڑے عہدے پر فائز کرنے پر وزیر اعلیٰ KCR و تمامی BRS پارٹی سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر تمام جمعیت علماء کے ذمہ داران کے علاوہ ایڈوکیٹ جنید و دیگر موجود تھے۔ جیسے جو ہے اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے اور خاص طور پہ جو ہے اس حد تک جو ہے جو لوگ امید رکھ کے آتے ہیں انشاءاللہ اللہ جو ہے ہم پوری امید کریں گے اور حکومت کا جو بھی ساتھ ہم کو جو ہے بھرپور ساتھ ملے گا، یہ توقعات بھی ہے اور یہ ہمیشہ ہوتے ہوئے آیا کہ جو اس ادارے کو جو ہے بہت حد تک جو ہے حکومت جو ہے اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جو ہے KCR صاحب جو ذمہ داری ملتی ہے KCR حکومت پہ بھی جو ہے داغ آنے نہیں دوں گا اور KCR صاحب کے نام پر بھی جو ہے کوئی غلط کرنے نہیں دوں گا۔ ڈیفینیٹلی جو ہے میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤں گا۔ پھر ایک بار میں حافظ لئی خان کی صدارت جمعیت علماء ہے، میں ان کی جو ہے تمام ذمہ داروں کا آپ نے عزت افزائی کی ہے، یہاں پر بلا کر ہمت افزائی کی ہے میری، میں اس کے لیے جو ہے ممنون و مشکور ہے۔ جناب طارق انصاری صاحب جو کہ نو منتخب صدر نشین اقلیتی کمیشن کے مائنارٹیز کمیشن، تو بعض لوگ اس کو دوسرے جو مائنارٹیز کے عہدے ہیں ویسا سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اوروں کی بنسبت مجھے اس عہدے کے بارے میں تھوڑی زیادہ معلومات ہے، تھوڑی زیادہ، اتنی زیادہ نہیں۔ میرے یہی خیالات تھے کہ اور یہ امید اور توقع بھی ہے کہ آپ اس عہدے کے اوپر انشاءاللہ پورا کھرا اتریں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو
अपनी मदद नुसरत शामिल हाल में रखें, ताकि आप दूसरों की मदद के लिए जब आप आगे जाएं, हुकूमत के इस सरकारी ओहदे के साथ ये जुडिशल पावर है, इसकी हैसियत हाई कोर्ट के जज के मौक़िफ़ की जैसी रहती। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ओहदा मिला है, उससे मुसलमानों को जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ होने की हम उम्मीद रखते हैं। मदरसा इस्लाहुल बनात खुदावनपुर नंदीपेट का पहला जलसा ख़वातीन की दीनी तालीम व तरबियत व इस्तक़बाल रमज़ान का इनेक़ाद, कसीर तादाद में ख़वातीन से शिरकत की अपील। मदरसा इस्लाहुल बनात खुदावनपुर मंडल नंदीपेट का पहला सालाना जलसा बउनवान ख़वातीन की दीनी तालीम व तरबियत व इस्तक़बाल रमज़ान बतारीख़ 12 मार्च 2023 बरोज़ इतवार बवक्त बाद नमाज ज़ोहर बमुक़ाम बहरीन शाह फंक्शन हॉल ओल्ड मस्जिद खुदावनपुर मुनक़्क़द होने जा रहा है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब मदद आली नाज़िम मदरसा मज़हर उलूम इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद व सदर जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद फरमाएंगे। मेहमानान ख़ुसूसी नौजवान आलम दीन ख़तीब ज़ीशान हज़रात मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर साहब ख़ासमी मदद ज़िल्लाउल-आली नाज़िम इदारा कैफुल ईमान ट्रस्ट हैदराबाद, ख़तीब बाबिखार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब ख़ासमी मदद ज़िल्लाउल-आली कामरेडी, मौलाना मुफ्ती शेख महमूद ख़ासमी साहब उस्ताद अरबी इदारा मज़हर उलूम निज़ामाबाद, हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद अली ख़ासमी साहब मदद ज़िल्लाउल-आली उस्ताद अरबी इदारा मज़हर उलूम ट्रस्ट निज़ामाबाद के खिताबात होंगे। हाफ़िज़ अब्दुल रशीद साहब मज़हरी सदर जमीयतुल उलमा नंदीपेट, मुफ्ती शेख फयाज साहब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत नंदीपेट, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब मज़हरी नंदीपेट। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस ज़रीन मौके पर मदरसा हाज़ा की होनहार तालिबात का तक़र्रुरी मुज़ाहरा होगा। इंशाअल्लाह क़िराअत कलाम पाक हाफ़िज़ रेहान, नात पाक हाफ़िज़ मुबीन सुनाएंगे। नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी रहेंगे। इस मौके पर मुफ्ती फ़िरोज़ असदी नाज़िम व जमी अराकिन मदरसा इस्लाहुल बनात ने तमाम मुसलमानों मर्द व ख़वातीन से शिरकत व इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की है। स्पीकर पोचराम्स यूनिवर्सिटी के हाथों जदीद इमारत गवर्नमेंट उर्दू मीडियम कॉलेज बांसवाड़ा का इफ्तिताह, तलबा व तालिबात से स्पीकर पोचराम्स यूनिवर्सिटी का खिताब। ज़िले कामाडी बांसवाड़ा में कॉलेज डे प्रोग्राम का इनेक़ाद, स्पीकर पोचराम के हाथों गवर्नमेंट उर्दू मीडियम कॉलेज जदीद इमारत का इफ्तिताह, तलबा व तालिबात से स्पीकर पोचराम यूनिवर्सिटी ने खिताब करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से आने वाले दिनों में 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाने वाला है। इन्होंने कहा कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स वगैरह कायम करना है हुकूमत तेलंगाना की जिम्मेदारी है, लेकिन इसको लेकर चलना और इससे इस्तिफादा हासिल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तेलंगाना हुकूमत तालीम पर तलबा के लिए हर साल 20,000 करोड़ रुपए सर्व कर रही है, जो एक मिसाल है। इस मौके पर कॉलेजेस के साथिज़ा, तलबा व तालिबात के अलावा बीआरएस पार्टी कायदीन मौजूद थे। కాన్సెన్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి జనమే నా కుటుంబ సభ్యులు, కానీ ఆనందాన్ని పంచుకునేది ఎక్కడ? మీతో. ఈ సందర్భంలో మనమందరం తెలంగాణ బిడ్డలం. భారతదేశంలో జాతీయ స్థాయిలో సర్వే జరిగింది. తల్లి పాలను పిల్లలకు తాగించటానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగి మోటివేషన్ చేసి తల్లి పాలను ఎక్కువ రోజులు తల్లికి వచ్చినటువంటి బుర్రు పాలను తాగించేటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఏది అని సర్వే చేస్తే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ సంయుక్తంగా కలిసి సర్వే చేస్తే 2 సార్లు ఆ సర్వేలో వచ్చినటువంటి మొదటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దేశంలోనే బాన్స్వాడ ఆసుపత్రి। रियासती माइनॉरिटी चेयरमैन तारिक अंसारी को भीमगल एडवोकेट रहमान सिद्दीकी व बाबापुर एमपीटीसी सुरजिल ने दी मुबारकबाद। रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के तौर पर नामजद होने वाले तारिक अंसारी से एडवोकेट रहमान सिद्दीकी व बाबापुर एमपीटीसी सुरजिल ने मुलाकात करते हुए शालपुशी गुलपुशी करते हुए तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तारिक अंसारी ने रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के तौर पर तकर्रुर करने वाले CM KCR व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता व रूरल MLA बाज रेड्डी गोवर्धन को इजहार तशक्कुर पेश किया। CM KCR की क़यादत में जारी तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर आरमूर शहर के मोदीराज बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद अफराद BJP पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए ज़िले TR सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों PRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में जारी तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर आरमूर शहर के मोदीराज बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद अफराद BJP पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए आज हैदराबाद की बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर में मुनक़दा प्रोग्राम में ज़िले TR सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले
مدیرات سنگم کے قائدین ایم پوشٹی، ایس پوشٹی، ایم جے آر مندولا، اشوک جے بھاسکر، شیلا سریکانت، ٹی بھومنا، گنگادھر، پوسٹ آفس بھومنا، کٹکم سریش کو بیارس پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر پرزور استقبال کیا۔ اس موقع پر پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں عمل میں لائے جانے والے مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات کے تحت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فیضیاب کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ٹیآرایس حکومت کے اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والی منفرد اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر قیام عمل میں لائے گئے اجلاس میں ضلعی ٹیآرایس صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی کابینٹ میں سی ایم KCR کی جانب سے لیے گئے فیصلے کے تحت دلت بندھو ڈبل بیڈروم مکانات کی اسکیم کے تحت ذاتی اراضی پر گھر تعمیر کرنے والوں کے لیے 3 لاکھ روپے کی فراہمی اور گزشتہ تعمیر کردہ مکانات سے متعلقہ خرچات کو معاف کرتے ہوئے قبائلی اراضی کے پٹہ پاس بک کی فراہمی، جیو نمبر 5859 جیسے اہم فیصلے غریبوں کے حق میں لینے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت غریب عوام کے مسائل کے یکسوئی کے لیے آسرا پینشن اسکیم کے تحت بے سہارا خواتین معذور افراد کو ہر ماہ پابندی کے ساتھ وظیفہ دیا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کی معیاری تعلیم کے لیے اقامتی اسکولز و ہاسٹلز قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آنگن واڑی کے ذریعے حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش غذا کی فراہمی عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ سرکاری دواخانوں میں زچگی کے موقع پر KCR کٹ کے ساتھ لڑکی کی پیدائش پر 13,000 اور لڑکے کی پیدائش پر 12,000 روپے فراہم کریں گے، اور حکومت تلنگانہ کے اقتدار میں خواتین کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے شی ٹیم ان کی مدد کریں گے، اور اس کے علاوہ ناگہانی صورتحال میں خانگی دواخانوں سے رجوع ہونے والے افراد روب صحت ہونے کے بعد ان کے علاج و معالجے پر خرچ ہونے والے اخراجات کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے ذریعے رقمی امداد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ غریبوں کی پریشانی سے بخوبی واقف ہے، اسی لیے انہوں نے غریبوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مختلف فلاحی اسکیمات کو متعارف کیا۔ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کی ملک بھر میں شہرت ہے، یہی وجہ ہے کہ مرکزی حکومت بھی تلنگانہ کی اسکیمات کی تلقین کریں گے۔ ملک کے بیشتر ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کو اپنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کی زیر قیادت میں ریاست تلنگانہ میں تمام طبقات کی ترقی کے لیے سینکڑوں فلاحی اسکیمات متعارف کی گئی ہیں، جن میں رائتو بندھو، رائتو بیمہ، مشن بھگیرتا، کلیانہ لکشمی، شادی مبارک، آسرا پینشن، ڈبل بیڈروم مکانات، آٹو و کار رانوں کے لیے مالی امداد و دیگر کا آغاز کیا گیا ہے۔ KCR حکومت میں تمام شعبہ جات کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، چونکہ KCR جو خود ایک کسان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کسانوں کے دکھ درد سے بہتر طور پر واقف ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسانوں کی مالی مدد کے لیے رائتو بندھو اسکیم متعارف کی گئی ہے، جس کی سارے ملک میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔ رائتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشتکاری کے لیے 1 ایکڑ اراضی پر سالانہ 10,000 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ٹیآرایس حکومت کے عملی اقدامات کے باعث کسانوں کے چہروں پر خوشی و مسرت ہے۔ زرعی شعبے بے مثال ترقی کی سمت رواں دواں ہے۔ چاول کی پیداوار میں ریاست تلنگانہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کے چاول کی ساری دنیا میں کافی مانگ ہے۔ دوسری طرف KCR نے کسانوں کے لیے اپنی نوعیت کی منفرد اسکیم رائتو بیمہ کا آغاز کیا ہے۔ رائتو بیمہ اسکیم کے تحت متوفی کسانوں کے وارث کو 5 لاکھ روپے مالی امداد دی جا رہی ہے۔ بیمہ کا پریمیم بھی ریاستی حکومت کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہے۔ KCR کی فلاحی اسکیمات کی ہر کوئی مترادف ہے، اسی لیے وزیر اعلیٰ KCR جو غریبوں اور بے یار مددگاروں کے مسیحا مانے جاتے ہیں، شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کو متعارف کرواتے ہوئے اس اسکیم کے تحت غریب و مستحق خاندانوں کے لڑکیوں کی شادی بیاہ کے لیے 1,01,16 کی مالی امداد دی جا رہی ہے، جس کی ملک بھر میں نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ KCR جو ایک سیکولر ذہن کی شخصیت ہے، جنہیں اخلاقی دوست کا شرف حاصل ہے، تو کہیں مفلس غریب بے یار مددگاروں کا مسیحا کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ خواتین ریزرویشن بل ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ نیو دہلی پر جنتر منتر پر ایک روزہ بھوک ہڑتال سے MLC کے کویتا کا خطاب۔ خواتین ریزرویشن کے حصول کے لیے دہلی کے جنتر منتر پر بھارت جاگرتی کے زیر نگرانی منعقدہ بھوک ہڑتال میں CPM جنرل سیکرٹری سیتا رام یچوری نے شرکت کرتے ہوئے تائید فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ MLC کے کویتا کا کافی خوشائن قدم ہے۔ کئی رکاوٹوں کے بعد خواتین کے ریزرویشن کی بل راجیہ سبھا میں منظوری عمل میں لائی گئی، لیکن لوک سبھا میں بل کو پاس نہیں کیے جانے کے باعث پارلیمنٹ کے اجلاس میں خواتین ریزرویشن بل کو منظوری عمل میں لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ گزشتہ خواتین ریزرویشن بل کو وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی جانب سے تائید فراہم کی گئی ہے، لیکن اب 9 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی لوک سبھا میں بل کو پیش نہ کیے جانے پر سخت تنقید کی۔ اگر سارے دل ایک ہو کے پوچھیں گے تو پھر غلطی تو بھارت سرکار کی ہوگی، لیکن پوچھنے کے لیے جتنے بھی آج یہاں پہ آئے ہیں ان کا دھنیواد ہم مہیلاؤں کی طرف سے کرتے ہیں،
और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सत्र में आप प्रेजर करें। और आपके साथ साथ आपको हिम्मत देने के लिए, आपको हौसला देने के लिए हम महिलाएं सिर्फ आज दिल्ली से शुरुआत हमने किया है, लेकिन हिंदुस्तान के हर शहर में भी हम आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन जारी रखेंगे। और ये सत्र से लेके दिसंबर में जो विंटर सेशन है तब तक भी हम आंदोलन चलाते तब तक भी हम आंदोलन चलाते रहेंगे, क्योंकि इस सरकार के लास्ट 2 सत्र है ये लास्ट 2 सेशन के बाद उनके पास चांस नहीं होगा ये बिल लाने के लिए। तो ये 2 सत्र में बिल लाने के लिए हम उनसे डिमांड करते हैं। और आज देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे हमने 1992 में पंचायत में, लोकल बॉडीज में 33% हमने वुमेन रिजर्वेशन दिया है। 1992 में हमने 33% वुमेन रिजर्वेशन दिया, तो आज तकरीबन 21 राज्यों में 21 स्टेट्स में मोर देन 50% महिलाएं आज लोकल बॉडीज में आ चुकी है। एक या 2 राज्य ऐसे हैं, उनमें से अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश भी एक राज्य ऐसा है जहां पे सिर्फ अभी भी 33% रिजर्वेशन ही है, और साथ एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहां पे कम रिजर्वेशन है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि 92 में लोकल बॉडीज में जब हमने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, आज 50% से ज्यादा वो लोकल बॉडी में आ चुकी है। हैदराबाद में नौ तामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का 30 अप्रैल को इफ्तिताह अमल में लाने का सीएम केसीआर ने किया फैसला। हैदराबाद में नौ तामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का सीएम केसीआर मुशाहिदा करते हुए वहां पर जारी भवन के तामीरी कामों का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह अमल में लाने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान से तबादले ख्याल किया। और दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट के करीब ज़ेर तामीर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुजस्समे का अप्रैल 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती तकरीब के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने नकाब कुशाई अमल में लाने का फैसला किया। बातज़ा सीएम केसीआर ने तमाम सेक्रेटेरिएट का जायजा लेते हुए ज़ेर तामीर कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए और अंदरून 2 जून तक सेक्रेटेरिएट अम्बेडकर मुजस्समे व शोहदा के मुजस्समे को इफ्तिताह अमल में लाने के ताल्लुक से हाल ही में मुनक़दा कैबिनेट इजलास में सीएम केसीआर ने फैसला किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। निजामाबाद रूरल हल्के में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बावजडी गोवर्धन व इनके शरीक हयात ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ शादी तकारीब में की शिरकत व नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद। निजामाबाद रूरल हल्के में टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बावजडी गोवर्धन वो इनके अहलियात दौरा करते हुए मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत की। वो नए शादीशुदा जोड़े को पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह से तिरमनपल्ली बेरप्पा मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मनादिर कमेटी मेंबरान व मुकामी अवाम की जानिब से आरटीसी चेयरमैन एमएलए बावजडी गोवर्धन, जेडपीटीसी जगन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बेरप्पा मंदिर के लिए 10 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के लिए दहली के जंतर मंतर पर एमएलसी के कविता के ज़ेर निगरानी मुनक़दा भूख हड़ताल में ज़िले ख़वातीन के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में की शिरकत। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता के ज़ेर निगरानी में दहली के जंतर मंतर पर मुनक़दा भूख हड़ताल में बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा शरद रेड्डी, रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा इंदलवई, जेडपीटीसी सुमना रेड्डी, साबिक़ा कॉर्पोरेटर विशालनी रेड्डी के अलावा निज़ामाबाद एमपीपीस ने शिरकत की। के कविता को तायद में वो ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत करते हुए धरने में प्ले कार्ड का मुजाहरा किया। डोकरा किफ़ायत शाह सोसाइटी के जरिए तैयार करदा मसनूआत को सुपर मार्केट खरीदी अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अहकामात किए जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस वक्त कुछ ताजरीन की जानिब से अपनी जायदाद में इजाफा करने के लिए अशिया, साबुन, मीठा तेल, खोपरे का तेल, मिर्च व हल्दी में मिलावट करते हुए अवाम की कीमती जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे ताजरीन की अशिया को मार्केट में न आने देने के लिए तेलंगाना सरकार ने किफ़ायत शाह सोसाइटी को माली मदद देते हुए इनके हाथों घरों में इस्तेमाल करने वाले अशिया, मिर्च, हल्दी, तेल की तैयारी के लिए कॉटेज इंडस्ट्री का क़याम अमल में ला रहे हैं। और एक तरफ ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकीम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मिलावट से निजात दिलाने के लिए बगैर मिलावट के अशिया अवाम को फराहम करने के मकसद के तहत खर्जात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। రేపు ఇది వేసుకుని నడుస్తుంది నాకు, కానీ ఇది నిన్న తిన్నా కాబట్టి ఇవాళ తినకుండా నడుస్తుందా? రోజు కావాల్సిందే, తినే వస్తువు అనేది రోజు కావాల్సిందే. ఈరోజు ఇది లేదు, నాకు ముక్కు తుడుచుకోవాలి, దొత్తును తుడుచుకుంటా, కరన్నం తినాల్సిందే, మైక్ లేదు పట్టిగా మాట్లాడతా,
తినేది తప్పక తినాల్సిందే. నీళ్ళు గాలి భోజనం తప్పనిసరి కావాల్సిందే. మరి అందరికి భోజనం కావాలంటే మరి భోజనం తినడానికి ఇవన్నీ కావాలి, ఉపవాసం ఉండలేం కదా. కాబట్టి మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి, ముందు కొంతమంది స్టార్ట్ చేయండి, దాన్ని మంచిగా అనిపించుకుంటే దాన్ని మంచిగా విస్తరించుకోండి. మన అధికారులు కూడా మీకు సహకరిస్తారు, बैंक को सहकरिస్తారు. असम्बली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होने का बीआरएस पार्टी के तौसी इजलास से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया इजहार. बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात में बयान दिया. इन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में असम्बली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे. इन्होंने कहा कि तमाम सर्वे हमारे हक में है. केसीआर ने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी के तौसी इजलास में कायदीन को मुख्तलिफ तजावीज़ व मशवरे देते हुए कहा कि अरकान असम्बली को हल्कों में रहने और अवाम से मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूब अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात से अवाम को फैज़याब कराए और मनसूबाबंदी के तहत पैदल यात्रा करते हुए अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया. गल्फ एजेंट से शौर बेदारी प्रोग्राम का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने इनेकाद अमल में लाया. निज़ामाबाद आर्मर बोधन डिवीज़न के अहाते में गल्फ एजेंट व सब एजेंट से शौर बेदारी प्रोग्राम पुलिस दफ्तर के प्रशांति नीलाय में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शिरकत की. इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए कहा कि बैरूनी ममालिक में रोजगार हासिल करने के लिए जाने वाले अवाम सिर्फ मरकजी हुकूमत के लाइसेंस याफ्ता एजेंट से राब्ता पैदा करे, गैर लाइसेंस याफ्ता सब एजेंट से कोई राब्ता न करने का इजहार किया. వారికి ఇస్తుంది కాబట్టి వీటిపైన మళ్ళొకసారి అందరినీ మా అధికారులకు ఆదేశించడం అయింది. 18 మందికి వారి ఎక్స్పైర్ అయిందా వారిది లేక ఉందా అనేది తీసుకున్నాక తప్పనిసరిగా ఏవైతే జరిగిన మోసాలపైన ఆల్రెడీ కేసులైన ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేసిన వాళ్ళపైన పీడీ యాక్ట్ పెట్టేదానికి కూడా వెంకాడండి. మాకు ల్యాండ్ ఆర్డర్లు 1,00,000 పనులు ఉంటాయి. దీని మీద ప్రత్యేకంగా పెట్టాం కదా. మాకు ఎప్పుడు వస్తుంది వెరిఫికేషన్, పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ వస్తేనే మేము ఇవ్వగలుగుతాం. అవునా? మరి మీకు జాబ్ సోర్స్కి వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఎవడో ముక్కు మొహం తెలియనోడు వచ్చి హెచ్పల్లిలో ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిందంటే మీరు ఏం చేశారు చెప్పండి. మీరు లైసెన్స్ చూడలేరు, 50 లక్షలు ఫీజు కట్టారా, డిపాజిట్ చేశారా, ఉన్నాయా? మరి మీరు నష్టపోతున్నారు కదా, ఎట్లా మరి? सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए अंजानी खाय सायना की तस्वीर पर सीएम केसीआर ने गुलहाय अक़ीदत पेश की. बीआरएस पार्टी की तौसी इजलास में हाल ही में फौत होने वाले सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए अंजानी खाय सायना की तस्वीर पर बीआरएस के सरबराह व सीएम केसीआर व बीआरएस कायदे ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की. तेलंगाना में इस मरतबा नेट के 3 सेंटर्स बर्खास्त. 7 मई को रियासत के 21 सेंटर्स पर नेट इम्तिहान. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुल्क के मेडिकल कॉलेजों और बीडीएस कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक़िद होने वाले नेट यूजी 2023 के दाखिला इम्तिहान के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेट का दाखिला इम्तिहान 7 मई को मुनक़िद किया जाएगा, लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नेट दाखिला इम्तिहान तमाम 21 ज़िले मराकज़ मुनक़िद किया जा रहा है. गुज़िश्ता साल ये 24 ज़िले मराकज़ में मुनक़िद हुआ था. इस साल कमराभीम, आसिफाबाद, विकाराबाद और मेदक ज़िले मराकज़ में नेट इम्तिहान नहीं होगा. इन अज़ला के तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वह अपने करीबी ज़िले के नेट मराकज़ का इंतखाब करें. पिछले साल नेट का दाखिला इम्तिहान मुल्क भर के 543 शहरी मराकज़ में लिया गया था, जबकि इस साल ये इम्तिहान 485 मराकज़ में मुनक़िद किया जा रहा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 शहरों में सेंटर को ख़त्म कर दिया है. MBBS, BDS, BAMS, BS, MSB, UMS, BHMS कोर्सेज नेट के दाखिला इम्तिहान के जरिए दिए जाते हैं. ख़वातीन तमाम शोबेजात में तरक्की हासिल करने का विश्व सिंधी सेवा संगम सदर भावना नागा देव ने किया इजहार. आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र शहर के सुभाष नगर में वाक़ आरोग्य रक्षा इंस्टीट्यूट में यौम ख़वातीन तक़रीब को विश्व सिंधी सेवा संगम के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया. इस मौके पर संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने आरोग्य रक्षा इंस्टीट्यूट, योगा टीचर्स को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाएगी. इस प्रोग्राम में दुर्गा, सोनी, अनीता, जानकी, पूनम व दीगर ने शिरकत की. विश्व सिंधी सेवा संगम निज़ामाबाद टीम असांजी निज़ामाबाद टीम गॾिजी आहे वुमेंस डे जे ॾींहुं मिसिस ऐश्वर्या काले जे इंस्टीट्यूट में मिसिस ऐश्वर्या काले खे ऑनर करण खां अॼु असां हिते गॾिजिया आहियूं.
कोरिटला में किसान फैशन मॉल का मशहूर फिल्मी अदाकारा नेहा शेट्टी ने किया इफ्तिताह। कोरिटला के किसान फैशन मॉल का इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी में मशहूर फिल्मी अदाकारा नेहा शेट्टी ने शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया और मुकामी अवाम को नया स्टॉक निहायती वाजिबी कीमत पर दस्तियाब है, लिहाजा अवाम इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने का इजहार किया। నేహా శెట్టి గారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వైఫ్స్ అందరికి మీరు షాపింగ్ చేస్తారా? మీరందరూ చేస్తారా? ఓకే, మరి నేను డాన్స్ చేస్తా. నేహా శెట్టి గారు యు ఆర్ ఆర్ లక్కీ హీరోయిన్. మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన ప్రతి जिले कामारेड्डी में 10th क्लास के इम्तिहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत मुनाकिद करने का जिले कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। कामारेड्डी के संदीपानी कॉलेज में बरोज़ जुमेरात 10th क्लास इम्तिहानात के इंतजामात के ताल्लुक से जिला कलेक्टर जितेश पाटिल ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद के इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में क़याम अमल में लाए गए 63 मराकज़ में जुमला 11,899 तलबा 10th क्लास का इम्तिहान तहरीर करेंगे और इम्तिहानी मराकज़ के पास 144 सेक्शन का निफाज अमल में लाने का इजहार। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अहदेदार राजू और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल तारीख़ी अहमियत रखती है। न्यू दिल्ली जंतर मंतर पर मुनक़िदा एक रोज़ा भूख हड़ताल में MLC के कविता ने की शिरकत। रियासत में ज़िमनी इंतख़ाबात शेड्यूल के मुताबिक होने का BRS पार्टी तौसी इजलास से CM KCR ने किया ऐलान। डोगरा किफ़ायत सोसाइटी की जानिब से तैयार करदा मसनूआत को सुपर मार्केट खरीदारी अमल में लाए कानून साज असम्बली स्पीकर कोचराम सिंह रेड्डी ने अहकामात किए जारी। CM KCR के दौर इक़्तिदार में रूपे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस BJP से वाबस्ता कायदीन जिले TR सदर आदमपुर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS में की शमूलियत इख्तियार। निजामाबाद रूरल हलके में TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजड़ी गोवर्धन ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ शादी तकारीब में की शिरकत। तिरमनपल्ली में बीरप्पा मंदिर की तामीर के लिए रखा संगे बुनियाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।